Hi friends, how are you all? Today we will cover the next card in the tarot reading, which is the card number 3, and the name of this card is the Empress. The Empress card is a very positive card. If you're looking for any kind of question or you want to know any query, so overall this is a yes card. Okay. Now coming forward to the description of this card, as we can see in this card that there is a lady and she is sitting on a very beautiful red color sofa. So by looking at the style of her sitting and her gown, it reflects the abundance and the prosperities. That means this lady has a very luxurious and a very comfortable lifestyle, and the crown on her on her head reflects that she stays and she enjoys the lifestyle as if she is a queen. Just like a queen, she is enjoying her luxuries. She's having abundance, she's having money, she's having fame and all the comforts. Similarly, this lady also is enjoying a very luxurious and a comfortable lifestyle. Okay. Now coming towards this heart, which is on the side of the sofa. Now heart is connected to the emotions. It is the loving and the caring nature and the loving energy of the lady. So as a person, if we talk about her nature, she is a very loving and a caring nature person, and she takes care of others just like a mother. Just as a mother, she's always protective towards her child and she's always loving and caring towards her child. Similarly, this lady is also having a nature of being a very loving and a caring person. Now, in the reading, if a man is doing a reading and this card comes, or if we are want to know somebody who is a male person, so this reflects the nature of a person that though he might be a man, but he is also very caring. He is a very caring type of a person, and overall he has a lot of feminine qualities. Now feminine qualities, it does not mean that he will be like a female or he walk like a female or he behaves like a female. Feminine quality means that he is little bit soft in nature. If we talk about his way of talking, his way of thinking, his way of greeting others, he is a very soft natured person. Okay. And he has all the qualities that have by is in a lady, and more of a motherly nature. Motherly nature means that he will always be caring towards his family, he will be concerned for his friends, he will be always be very active and proactive if you require any kind of help, because he's always will be a helping hand. Okay. Now if we talk about this grass on the feet of this lady, it reflects the growth and the prosperity and the fertility. Now if a married lady is coming to you and she is trying for a child and she wants to know that whether she will be able to conceive, so for the fertility point of view, this is a yes card. If somebody is trying for a baby or a child, then if this card is coming in her reading, that means she can go ahead and she will get a good response, and very soon there is a very high chances of that lady will conceive. Okay. So overall we can say that this is a very positive card. It is having all the type of abundance, all the type of fertility, all the type of resources. And if we are looking for somebody to marry, if you having some person in your mind and she's a girl or a lady or a woman, so and this card is coming, that means that lady is very rich. She's having a very comfortable and a very luxurious lifestyle. She has all the abundance. She is full of love and emotions towards her family. And if this lady will enter your family, she will be very affectionate towards you and your family members. Also, on the other hand, there is a very good chances of her conceiving very soon, and she can become a mother
And if you're looking for a marriage proposal, then very soon she will get married and become a wife. So this is a very positive thing, a very good thing, because overall the colors, if we see the combination of colors in this card, the background is all yellow. Okay, her dress is white. As I've told earlier also, white color is always connected with the purity. That means she is a very pure lady, she is a very pure hearted lady, she is a very pious lady. And the red color is always related to energies, good energies and prosperity. And the flowers of her dress reflects the fertility. So overall, if you talk about this lady, and she is a person who is want to get married to your family, or you are looking for somebody, and this card is coming, that means this is a good card. It reflects the abundance, all type of comfort, all type of luxuries, all kind of happiness. And now if you see, this is a 3 number card. Now 3 number card in numerology or astrologically, if we say, it reflects the Jupiter. So Jupiter is what? Jupiter is a very strong planet. It gives the growth, the prosperity, the happiness, the marriage. It is related to all type of abundance. And if I talk about job, suppose you're looking for a job and this card is coming, that means it's a positive card. If you will go ahead and join this job, you will have all the abundance. But it also reflects that you have to control your emotions as well, because it is related to a very emotional part. If you are having lot of emotions, you are a very motherly lady type nature, so you have to be very very careful, because what happens that sometimes people take wrong advantage of you being too emotional also. So you have to be in complete control of your emotions also. Okay. And if I talk about the greenery in the background, so greenery is always a very positive thing. As you can see, the body language of this lady, the way she is sitting, she reflects that she is a very calm, composed and a very balanced nature person. Okay. And she is having the balance about everything. And the crown on her head reflects that she is just like a queen. Now the queen is what? Queen is somebody who is very rich, and she has team of people who always listen to her, they always obey her orders. So she is also having an authoritative nature as well. That means she can be a rich person or a rich lady or a rich businesswoman, or she can be a mother, or she can be a wife who is stays, and she has a lifestyle of being like a queen. And all the family members, all her children, they listen to her, they admire her, and she also is in return, she is very affectionate towards her family and her friends. Simultaneously, her family gives her love and affection, and in the return she also gives them love and affection. Okay. And she is a very pious lady. Okay. Just like a mother is there who take care of you and in your good and bad times, who's always supporting you, similarly this girl is also like a mother nature. Okay. She's always supportive of her family, she's always concerned of her family. And if you are searching for a life partner, suppose this card is coming in the reading for a male. Suppose I am a girl and I am want to marry someone, and I'm going for a reading for a tarot reading, and this card comes. That means the person I'm thinking about is also a very feminine type of person. It does not mean that he's like a female, but yes, it does reflect that he is a very soft hearted person. He's a very caring person, he's a very affectionate person who like a mother always take good care of his family.
and if this person will become a life partner, then he will always be loving and caring nature. So without any doubt or any type of fear, I can go ahead with this person, as this person will be a good match for me. And if I talk about the marriage point of view and this card is coming, that means my marriage with a person will be very fruitful, because I'm having a good life partner who is always standing by my side, who's always caring for me, who's always going to be next to me, just as a mother is always there with her children to support. Similarly, this partner will also be there for the support. So but this card also reflects the growth and the stability. If we talk about the job, if I'm going to change a job or I'm looking for a job, so and this card is coming in my reading, that means that very soon I will be having a growth, I will be having a stability in my job place. If I'm already working, then there is a high chance of growth, and if I'm looking for a good change, then my next job will give me the growth and the stability. So there are certain points which you need to think. Also there is one more thing, there is one more kind of you can say uh, advice, that if this card is coming in your reading, though there is lot of abundance and there is lot of luxuries, there is lot of positivity, there is lot of growth and stability, but also there is one learning, one thing you have to be very careful, that you have to be open minded and you have to be very creative, because it's not like that somebody will only give you everything all the time, and in the return you are not giving that person anything. So it is not like that, it is vice versa. If you are also open minded person and you show your creativity, your bosses are happy with your work, and you're able to perform good, and you're showing your good performance, then there is no looking back. You will definitely have the growth and the stability. You will definitely have the salary hike. You will definitely have the promotion and the job growth and stability. So this you have to be very very careful. And suppose this card is coming for somebody who's looking for a marriage, or somebody who's planning for a baby, or somebody is having a query that I should go ahead with any type of task, then this card is coming. That means yes, it is a very good card which will give you lot of growth, lot of happiness, lot of stability. And this is overall a yes card. As in the picture we cannot see any negative things around this lady. She is surrounded by greenery. In the back side of her there is lot of long trees and greenery, and on her feet also there she is sitting on a sofa which is having a grass. That means overall she is surrounded by abundance of fertility, prosperity and happiness. And as the combination of this card shows, it is also having very bright colors like yellow color, white color, red color. These are all very bright colors. There is no negative color in this, like black or any color which shows the negativity side. So this is not a very negative card, it's a very positive card overall, because it has a very positive color combination around her. So overall it's a good card. Okay, so this was the description. If you like this description, please do like, share and subscribe, and so that I will feel more motivated to bring more readings with you, to share more readings with you. ओके एंड अब मैं इसका डिस्क्रिप्शन आपको एक हिंदी में भी दे देती हूँ. बेसिकली टैरो में ये 3rd नंबर कार्ड है. ये टैरो रीडिंग का बहुत ही पॉजिटिव और यस कार्ड होता है. नाउ इस कार्ड की एक्सप्लेनेशन के लिए अगर हम देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लेडी है, वो एक रेड कलर के सोफे पे बैठी हुई है, और
उसने एक वाइट कलर का गाउन पहना है जिसके ऊपर फ्लावर का डिज़ाइन बना है। इसके सिर के ऊपर एक क्राउन है, जैसे एक रानी के सिर पे क्राउन होता है उसी तरीके से इस लेडी के सिर पे एक क्राउन है। ओके, तो अगर हम इसको रीडिंग की बात करते हैं तो इस कार्ड में आपको हर तरीके की हैप्पीनेस दिखेगी, फर्टिलिटी दिखेगी। अगर कोई लेडी है तो उसमें आपको एक लेडी में क्या नेचर होता है, लेडी एक माँ बनती है, एक बीवी बनती है, एक अच्छी दोस्त बनती है, वो आपकी केयर करती है, वो आपका ध्यान रखती है। तो ये लेडी भी एक माँ की तरह है जो अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का ध्यान करती है। इसका जो नेचर है वो बहुत अच्छा है। और जैसे कि सोफे के साइड में आप एक हार्ट की फ़ोटो देख रहे हैं, तो हार्ट क्या होता है, हमारा दिल क्या होता है, हमारे दिल के अंदर जो इमोशंस होते हैं, प्यार होता है दूसरों के लिए, हमारे पास जो फीलिंग्स होती हैं, तो ये सब एक अच्छी पॉजिटिव फीलिंग्स दिखाती है कि इस लेडी का नेचर बहुत अच्छा है। उसके पास हर तरीके का रिसोर्सेज हैं, उसके पास पैसा है, वेल्थ है, हैप्पीनेस है, और नेचर वाइज भी वो लेडी बहुत अच्छी है। जैसे कि एक माँ की तरह होता है कोई, वो माँ की तरह सबकी केयर करती है, सबका ध्यान करती है, और उसके पास एक बहुत ज़्यादा लविंग नेचर है। तो लविंग नेचर होना एक बहुत अच्छी बात होती है। अगर अभी हम किसी की शादी की प्रिडिक्शन करते हैं और ये कार्ड आता है, सपोज़ आप एक लड़की हो और आप किसी लड़के के बारे में सोचते हो या किसी से शादी करने जा रहे हो और आपका ये कार्ड आता है, तो इसका मतलब ये है कि जो ये फीमेल है, फेमिनन है, उसी तरीके से आपके पार्टनर के अंदर भी एक औरत की तरह, एक फीमेल की तरह इमोशंस भी हैं और केयरिंग नेचर भी है। दैट मीन्स कि आपका लाइफ पार्टनर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होगा, आपकी तरफ केयरिंग होगा, वो आपको प्यार करेगा, आपका ध्यान करेगा। जैसे कि एक माँ एक बच्चे का ध्यान करती है, उसी तरीके से वो भी आपको खुश रखेगा, आपका ध्यान रखेगा। और अगर हम प्रॉस्पैरिटी की बात करते हैं तो इस लेडी के जो ड्रेस पे ये जो फ्लावर्स बने हैं, ये प्रॉस्पैरिटी को दिखाता है, अबंडेंस को दिखाता है। अब अबंडेंस किस तरीके से हो सकती है, उस आदमी के पास पैसा हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकती है, हो सकता है वो बहुत अच्छी पोस्ट पे काम करता है, वो बहुत सक्सेसफुल है, उसकी लाइफ में ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है। और अगर ये कार्ड हम कोई लड़का प्रिडिक्शन कर रहा है और किसी से शादी करना चाहता है, तो उसकी लाइफ पार्टनर के लिए ये कार्ड आता है, तो दैट मीन्स उसकी लाइफ पार्टनर में भी वो सेम क्वालिटीज़ हैं। यानी कि वो भी एक माँ की तरह अपनी फैमिली का ध्यान करती है, वो बहुत केयरिंग नेचर की है, बहुत लविंग नेचर की है, उसके पास पैसा है, वेल्थ है। अगर वो कहीं जॉब करती है तो उसकी जॉब बहुत अच्छी चल रही है, स्टेबिलिटी है उसकी जॉब में, ग्रोथ है, और आगे चलकर ये एक बहुत अच्छी लाइफ पार्टनर साबित हो सकती है। और दूसरी साइड पे अगर कोई लेडी मैरिड है और आपके पास आती है और वो बेबी प्लान कर रही है, तो ये कार्ड रिफ्लेक्ट करता है फर्टिलिटी को भी। यानी कि जैसे कि ये लेडी एक मदर से इसको अटैच किया गया है कि जैसे एक माँ अपने बच्चे से अटैच होती है, माँ अपने बच्चे को ध्यान करती है, ये लेडी का भी एक मदरली नेचर है। अगर ये कार्ड कोई मैरिड लेडी के रीडिंग में आता है और वो बेबी प्लान कर रही है, दैट मीन्स कि बहुत लाइकली चांस है कि बहुत जल्दी वो कंसीव करेगी और उसको माँ बनने की एक खुशखबरी मिलेगी। तो अगर कोई सोच रहा है कि मैं कंसीव करूं, मेरे लिए ये राइट टाइम है कि नहीं, और ये रीडिंग में उसके लिए कार्ड आता है, तो दैट मीन्स येस, दिस इज़ अ पॉजिटिव कार्ड एंड वेरी सून देर इज़ अ चांस कि वो कंसीव कर सकती है। दूसरा, अगर हम ये किसी की जॉब की रीडिंग के लिए ये कार्ड आता है, तो दैट मीन्स के जॉब में ये एक ग्रोथ और स्टेबिलिटी दिखा रहा है, बिकॉज इस लेडी के पीछे आप देख रहे हैं बहुत सारी ग्रीनरी है, ट्रीज़ हैं, बड़े बड़े प्लांट्स हैं, और पैरों में इसके बहुत अच्छी ग्रास है। तो ये ग्रोथ को दिखाते, जैसे ये ट्रीज़ ऊपर की तरफ जा रहे हैं, स्काई की तरफ ग्रो कर रहे हैं, सिमिलरली ये कार्ड में भी उसको बहुत ज़्यादा ग्रोथ और स्टेबिलिटी मिलने वाली है।
तो ओवरऑल ये जो कार्ड है ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। इस कार्ड में कोई नेगेटिव चीज़ आपको नहीं दिख रही है, क्योंकि इसकी जो कलर कॉम्बिनेशंस हैं वो बहुत सुंदर कॉम्बिनेशंस सेलेक्ट करे गए हैं। जैसे कि येलो कलर है, वाइट कलर है, रेड कलर है, ग्रीन कलर है, क्योंकि ये सब बहुत पॉजिटिव कलर्स माने जाते हैं। जैसे कि कंपैरिजन में ब्लैक कलर, क्योंकि ब्लैक कलर को हम हमेशा नेगेटिविटी से जोड़ते हैं, और पॉजिटिव कलर्स हम हमेशा येलो, वाइट, रेड, ग्रीन मानते हैं, क्योंकि ये एक फर्टिलिटी दिखाता है, प्रॉस्पैरिटी दिखाता है, हैप्पीनेस दिखाता है। अगर कोई खुश होता है तो ब्राइट कलर्स जैसे हम कहते हैं पहनता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर हम थोड़े सैड होते हैं तो हम थोड़े डल कलर्स पहनते तो हम और सैड लगते हैं। तभी कहते हैं कि अगर आप उदास हो या सैड हो तो आपको थोड़े ब्राइट कलर्स पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ब्राइट कलर पहनने से आपका मूड चेंज होता है, आप थोड़ा सा बेटर फील करते हो। तो सिमिलरली इस कार्ड में आप देखेंगे सब ब्राइट और अच्छे कलर्स कॉम्बिनेशन यूज़ करे गए हैं। इसमें कहीं पर भी आपको कोई नेगेटिविटी नहीं दिख रही है। ओवरऑल ये एक पॉजिटिव कार्ड है, यस कार्ड है। अगर मैरिज के लिए आपके पास कोई लड़की है आपके माइंड में और आप उससे शादी करना चाहते हो और ये कार्ड आपकी रीडिंग में आता है, दैट मीन्स कि वो लड़की बहुत अच्छी है, उसके अंदर एक बहुत क्लीन हार्ट है, और उसका नेचर एक मम्मी की तरह है। वो एक माँ की तरह आपको भी संभालेगी, आपकी फैमिली की भी केयर करेगी। और फर्टिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यस, बहुत लाइकली चांस है कि बहुत जल्दी आप पेरेंट्स बन सकते हो। और ओवरऑल ये मैच आपके लिए बहुत पॉजिटिव साबित करेगा एंड में, क्योंकि इस लड़की का पास हर तरीके की वेल्थ है, हैप्पीनेस है, अबंडेंस है, लग्जरी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर वो जॉब में है तो उसके बाद जॉब स्टेबिलिटी है, ग्रोथ है। और अगर आप खुद भी कोई जॉब ढूंढ रहे हो तो ओवरऑल आपको भी उसमें अबंडेंस मिलेगा। लेकिन एक चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको एक ओपन माइंड के साथ जाना है, क्रिएटिव माइंड के साथ चलना है। अगर आप ओपन हार्टेड होके काम करोगे, क्रिएटिव होके काम करोगे, मतलब आपके पास जो चीज़ आ रही है आपकी लाइफ में, आप उसको एक ओपन हार्ट से, ओपन हार्ट का मतलब है कि आप उसको 100% रिसीव करना चाहते हो, उसको लेना चाहते हो, उसको ग्रहण करना चाहते हो, और आप रेडी हो उस पर्सन को या उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए विद मतलब आप पूरे ही दिल खोल के, जिसको कहते हैं हिंदी में, कि उस काम के लिए या उस पर्सन के लिए आप सोचते हो तो ही आपको उसका रिटर्न मिलेगा। तो आपको अपना दिल खोल के वो काम करना है, यानी कि आपको उस पर्सन के साथ या उस काम के साथ अपना 100% देना होगा। आपको एक खुले दिल के साथ आगे चलना है, एक अच्छी थॉट के साथ आगे बढ़ना है, तभी आपको रिटर्न में वो चीज़ आपको फलेगी। ठीक है? दो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये आपको 100% अबंडेंस देगा, पैसा देगा, लग्जरी देगा, सब चीज़ें आपको देगा। लेकिन ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितने खुले दिमाग से उस चीज़ को लेना चाहते हो। तो ओवरऑल आपको कोई भी काम करना है या किसी पर्सन के साथ जुड़ना है, या आपको कोई आगे जैसे बेबी प्लान करना है, तो आपको खुले दिल से आगे बढ़ना है। 100% आपको सक्सेस मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको लग्जरीज़ भी दिख रही हैं, इसमें आपको प्रॉस्पैरिटी भी दिख रही है। क्योंकि अगर देखेंगे कि तो ये लेडी तो एक रानी की तरह बैठी है, इसकी बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, इसने सिर पे एक ताज पहना हुआ है, इसकी ड्रेस कितनी सुंदर लग रही है, इसका सोफ़ा जो है कितना रॉयल लग रहा है। तो ये एक लग्जरी का भी कार्ड है। अगर आप कोई काम करना जा रहे हैं, कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं, तो दैट मीन्स ये आपको लग्जरी भी देने वाला है। ओवरऑल ये मैरिज के लिए तो अच्छा है ही है, ये जॉब के लिए भी अच्छा है, ये बिज़नेस के लिए भी अच्छा है, क्योंकि ये एक लग्जूरियस और रिच लाइफस्टाइल दिखाता है कि एक अमीर लेडी है जिसके सिर पे ताज है, और उसका जो ड्रेस है, जो उसका सोफ़ा है, वो कितना रॉयल लुक दे रहा है। और अगर आप ध्यान से इस लड़की की बॉडी लैंग्वेज देखेंगे तो कितना
कॉन्फिडेंस दिख रहा है इस लेडी के अंदर, शी इज़ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। सो कॉन्फिडेंस सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास लग्जरी है, अच्छा लाइफस्टाइल है, स्टेबिलिटी है, ग्रोथ है, तो कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर डेफिनेटली आ ही जाता है। बट ये सब लेने के लिए आपको एक खुले मन से आगे बढ़ना पड़ेगा, एक क्रिएटिव माइंड के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आप इसका कॉन्फिडेंस आप देख पाओगे। नाउ अगर हम इसको ओवरऑल इसका न्यूमरोलॉजिकली एनालाइज करें तो ये नंबर 3 कार्ड है। नंबर 3 कार्ड जो होता है, जैसे कि हमारे हर एक प्लैनेट्स के कुछ नंबर्स होते हैं, तो 3 नंबर जो होता है वो हमारा बृहस्पति ग्रह से कनेक्टेड होता है। अब बृहस्पति का कलर पीला होता है। बृहस्पति ग्रह शादी के लिए होता है, फर्टिलिटी के लिए होता है, जॉब के लिए होता है, पैसे के लिए होता है, बिजनेस के लिए होता है। तो हर एक काम के लिए अगर आपका ये कार्ड आता है तो दैट मीन्स ये येस कार्ड है। आपको इस कार्ड आने पे आपको डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। हाँ, लेकिन हो सकता है कि आपके और भी कार्ड्स आप ले रहे हो। अगर आपका एक ही सवाल है और आपने कार्ड सेलेक्ट किया तो ये तो आपको येस कार्ड ही बोलेगा कि येस है, आप करिए काम। लेकिन अगर आपकी 2-3 और सवाल है डिफरेंट, तो फिर वो देखना पड़ता है कि आपके बाकी के कार्ड्स कैसे आए हैं। अगर तो सारे कार्ड पॉजिटिव आए हैं तो वो ओवरऑल पॉजिटिव है। हाँ, अगर आपके एक सवाल के लिए ये कार्ड आ रहा है तो ये कार्ड आपका 100% येस का कार्ड है। अब जैसे मान लीजिए आप किसी से जॉब करने जाते हैं, आपका ये कार्ड आता तो येस है, लेकिन आप ये देखना चाहते हो कि ये जॉब प्लेस ठीक रहेगा, ये बॉस ठीक रहेगा, ये जगह ठीक रहेगी, ये कंपनी ठीक रहेगी, ये सैलरी पैकेज ठीक है, या जो भी आपको और रिलेटेड है, तो फिर वो अदर कार्ड्स जो आपकी रीडिंग में आते हैं उसका कॉम्बिनेशन से हमें पता चलता है कि ओवरऑल एनालिसिस क्या है। बट ओवरऑल अगर आपका कोई भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि टैरो में हमेशा एक सवाल एक टाइम पे पूछा जाता है, आप सारा ओवरऑल नहीं पूछ सकते, हर एक सवाल के लिए एक रीडिंग अलग से निकलती है। तो अगर आपके माइंड में शादी, बच्चा या कुछ अच्छी चीज़ हैं तो प्रॉस्पैरिटी के लिए रिफ्लेक्ट करता है। अगर कोई औरत शादीशुदा है, बच्चा प्लान कर रही है, बेबी करना चाहती है, बहुत टाइम से नहीं हो पा रहा है, या वो डाउट में है कि उसको बेबी प्लान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और ये रीडिंग में कार्ड आता है, तो 100% ये तो मदरली नेचर का कार्ड है, फर्टिलिटी का कार्ड है। विदाउट एनी डाउट वो आगे बढ़ सकती है, उसको 100% रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि उसको एक ओपन हार्ट से जाना पड़ेगा, ट्राई तो करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, उसको हर तरीके का सपोर्ट मिलेगा, हर तरीके का उसको अबंडेंस है, हर तरीके का उसके पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन उसको एक मन में एक गुड फीलिंग, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे हार्ट है, इस सोफे के साथ जो हार्ट है, अब हार्ट क्या होता है, हमारा दिल होता है। हमारे दिल में जो इमोशंस होते हैं, जो अच्छी फीलिंग्स होती हैं, जो लविंग नेचर होता है, जो अच्छी भावनाएं होती हैं, वो सब रिफ्लेक्ट करता है। तो आपको उस काम को करने के लिए एक अच्छी फीलिंग और एक पॉजिटिव माइंड के साथ, एक ओपन हार्ट के साथ जाना है, तो आपको 100% उसमें रिजल्ट मिलेगा। अभी अगर हम आगे इसको थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं तो फ्रूटफुलनेस है, यानी कि फ्रूटफुलनेस का मतलब ये है कि जो काम आप करने जा रहे हो उसका आपको फल मिलेगा। जैसे कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, तो बेसिकली इस काम में भी अगर आप कोई काम करने जा रहे हो और आपका ये कार्ड में ये रीडिंग आ रही है, यानी कि आपको इसमें डेफिनेटली अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, आपको फल मिलेगा आपकी मेहनत का। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, ओपन हार्ट के साथ आपको जाना ही पड़ेगा, और आपको अपनी क्रिएटिविटी भी दिखानी है। अगर आप काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपको क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी, ओपन हार्ट के साथ आपको करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली आपको इसमें अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आपको इसमें फ्रूटफुलनेस का मतलब है कि आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा, ठीक है। और आपके पास हर तरह की लग्जरी आएगी, आपके पास पैसा आएगा, आपके पास स्टेबिलिटी आएगी, आपको इसमें ग्रोथ मिलेगी, लेकिन आपको पूरे खुले मन के साथ, अच्छी थॉट के साथ आपको ये काम करना पड़ेगा। ये तो हमारी अब एम्प्रेस की रीडिंग हो गई थी, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है।
अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे मोटिवेशन देने के लिए, मेरी और वीडियोस देखने के लिए मुझे डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए मेरी वीडियो को, और ताकि मैं आपके साथ और वीडियो शेयर कर सकूं और अच्छे से आपको टैरो रीडिंग के बारे में बता सकूं और आपको कार्ड्स की एक्सप्लेनेशन दे सकूं टाइमली, टाइम टू टाइम। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जल्दी मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ। फ्रेंड्स प्लीज़, अगर आप मुझे लाइक करेंगे, मुझे शेयर करेंगे, मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो मैं भी मोटिवेटेड फील करूँगी। मुझे भी लगेगा कि यस, कि जो मैं आपको ये नॉलेज दे रही हूँ ये आपको अच्छी लग रही है, आप मेरे और वीडियोस देखना चाहते हैं। बहुत जल्दी मैं आपके साथ और अच्छे वीडियो शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।